Here we saw that at this point you have the demand curve here, you have the marginal cost curve. हमने समझा था marginal cost curve का क्या interpretation होता है, demand curve का क्या interpretation होता है. We saw that this point here where the demand is exactly equal to the marginal cost or the prices are exactly equal to the marginal cost is the point of which is called as the socially efficient point. Because अगर आप इस point के left side पे देखोगे तो you notice that by increasing the output you can increase the value to buyers, because here to the left side you notice that the value to buyers is greater than the cost to producers. तो जितना कॉस्ट प्रोड्यूसर्स को इनकर करना पड़ रहा है उससे ज्यादा वैल्यू करते हैं उस कमोडिटी के लिए कंज्यूमर्स. सो यू कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी इन द मार्केट बाय इंक्रीजिंग द आउटपुट. Similarly, if you look at the right side of this quantity, you notice that the cost to producers is greater than the value. तो अगेन एक इनएफिशिएंट जोन में आप प्रोड्यूस कर रहे हो एंड यू कैन इंक्रीज द एफिशिएंसीज बाय डिक्रीजिंग द आउटपुट. अल्टीमेटली कमिंग बैक टू दिस पॉइंट वेयर द प्राइसेस आर इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज द पॉइंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी. यहाँ पे आपकी ऑप्टिमल लेवल ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है जहां पे एक्स्ट्रा यूनिट जो है कंज्यूमर्स को जो वैल्यू मिल रही है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है कंज्यूमर्स को, वो एग्जैक्टली इक्वल है एक्स्ट्रा कॉस्ट के. सो दिस पॉइंट इज अ सोशली ऑप्टिमम पॉइंट, सोशली एफिशिएंट पॉइंट, एंड वी can say that this is the point which is achieved in case of perfect competition. We know that in case of perfect competition we produce at a point where prices are equal to marginal cost. So we can say that in case of perfect competition हम इस level of social efficiency पे पहुंच जाते हैं. Now, what about monopolies? In case of monopolies, what happens? That this is your demand curve, this is your marginal cost curve, और आप बोल रहे हो कि ये आपका socially efficient point है. लेकिन आप मोनोपोली के केस में कहाँ पे प्रोड्यूस करते हो ये डिसाइड होता है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के point of intersection पे. So here you can notice that the marginal revenue is equal to marginal cost at this point. This is your socially efficient level of quantity as we just saw, and this point is the point of equilibrium in case of monopoly. So this is the monopoly quantity and corresponding to this quantity आप prices निकाल सकते हो. This is the monopoly prices, this is the monopoly quantity. You notice that in case of monopoly markets, the price charged is greater than the price at the social efficient level. जो socially efficient prices हैं उससे ज्यादा prices charge करी जाती है monopoly market में, and जो socially efficient level of quantity है उससे कम quantity produce करी जाती है monopoly market में. So if we compare the socially efficient point with the point of monopoly market, we see कि monopolies are far away from that point of social efficiency. So the monopolist produces less than the socially efficient level of output. What is happening? Why is the monopolist producing less than the socially efficient level of output? तो अगर आप यहाँ पे closely examine करो, you notice that prices are greater than the social efficient level. Now because of this increase in prices, market में कुछ ऐसे consumers होंगे who will stop buying this product. So if you look at this quantity, these are the people जिनका value to the commodity consumption is given by this point. Yeah, price charged by the monopoly is this, and the marginal cost is given by this. तो बेसिकली इस डिमांड कर्व के इस पार्ट को अगर आप फोकस करो, दीज आर, और बेसिकली ये जो डिफरेंस है क्वांटिटी में, अगर आप इस पे फोकस करो, इन सारे पॉइंट्स के लिए आप नोटिस करोगे कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे वैल्यू टू बायर्स इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट बट इट इज लेस देन द प्राइस चार्ज्ड बाय द मोनोपोली. सो व्हाट इज हैपनिंग? ये जो
एक्स्ट्रा लेवल ऑफ क्वांटिटी है जो कि सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ क्वांटिटी पे पहुंच रही है, मतलब ये बेसिकली डेफिसिट है। मोनोपोली इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, सोशली एफिशिएंट लेवल इतना प्रोड्यूस करता है। ये जो क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है ये इस वजह से हो रही है, और ये वो कंज्यूमर्स हैं जो कमोडिटी को एक सर्टेन वैल्यू देते हैं, उनके दिमाग में एक प्राइस है जो वो उस कमोडिटी के लिए स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये जो वैल्यू है, ये जो प्राइस है, ये उस कमोडिटी के मार्जिनल कॉस्ट से तो ज्यादा है, लेकिन जो प्राइस मार्केट में चार्ज किया जा रहा है बाय द मोनोपोली उससे कम है। एंड बिकॉज ऑफ दिस they are not purchasing this commodity. So basically this deficit consumption is coming from these consumers. कुछ कंज्यूमर्स मार्केट में कमोडिटी कंज्यूम करना बंद कर देंगे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइसेस, एंड दैट इज लीडिंग टू दिस रिडक्शन इन द क्वांटिटी in case of a monopoly market. So we can say that the monopoly quantity is definitely inefficient. It is not socially efficient, it is inefficient because it is less than the socially efficient level of output. So ये जो हम inefficiencies की बात कर रहे हैं monopoly market में, हम इसको एक और कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ सकते हैं which is called as the deadweight loss. And this triangle here exactly measures the deadweight loss of the monopoly markets. So ये basically deadweight loss आपको बताता है loss in total surplus, कितना total surplus lose हो रहा है because हम socially efficient level of output से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं in case of monopolies. So this red shaded area is giving you exactly the loss in total surplus of the society. This loss is happening because there is an increase in the price, and because of this increase in price there are some consumers who stop consuming this commodity, जिसकी वजह से quantity कम प्रोड्यूस होती है, equilibrium quantity कम होती है, और ये surplus का loss होता है. I already told you that total surplus is nothing but equal to consumer surplus plus producer surplus. Now the question which has to be clearly understood here is कि जब हम एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो हम सिर्फ टोटल सरप्लस से कंसर्न्ड हैं. हम ये नहीं बोल सकते कि कंज्यूमर्स को कम फायदा हो रहा है, सो इट इज अ वर्स ऑफ सिचुएशन, और प्रोड्यूसर्स को ज्यादा फायदा हो रहा है तो इट इज अ वर्स ऑफ सिचुएशन. वी कैन नॉट डिफरेंशिएट द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स एज अ सोशल प्लानर. अगर आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो देन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो हम बोलते हैं कि मोनोपोली केस में कंज्यूमर्स as compared to producers are in a worse off situation, producers are in a better off situation because उनको profits होते हैं. तो क्या हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो inefficiencies market में create हो रही हैं, is it because of monopoly profits? Are the monopoly profits a concern for the society? The answer is no. The society does not have a problem with monopoly profits. So if the producer is earning extra money, the society does not have a problem with it. The problem is occurring because there are some consumers who are leaving the market. So basically अगर हम इस equilibrium को थोड़ा ढंग से समझें, this is your marginal cost, this is your marginal revenue, this is demand, this is your quantity, optimum quantity, this is your price. इसको अगर आप ढंग से समझो तो आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइसेस जो हैं मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा हैं, because of which the monopoly is earning positive economic profits. यहाँ पे economic profits जो हैं वो positive हैं. Now the problem is not with the profits. The society or the social planner, the leader of the society would not have a problem with कि why is the monopolist earning profits. That is not a cause of concern. The cause of concern is that there are some consumers who are leaving the market because the prices are higher. तो यहां तक जो क्वांटिटी थी, पहले सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट पे इतनी क्वांटिटी कंज्यूम करी जा रही थी, और अब मोनोपोली लेवल पे इतनी क्वांटिटी कंज्यूम करी जा रही है. तो इतने जो क्वांटिटी कंजम्पशन हो रही है, जो कंज्यूमर्स ये क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो अभी भी मार्केट में है,
बस फर्क इतना है कि अब वो ज्यादा प्राइसेस पे ये कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो बिकॉज दे आर पेइंग एक्स्ट्रा प्राइसेस, दे आर पेइंग प्राइसेस मोर देन द मार्जिनल कॉस्ट, मोनोपोलिस्ट इज अर्निंग सम प्रॉफिट्स। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस में से कुछ पार्ट प्रोड्यूसर सरप्लस के पास जा रहा है फॉर दिस लेवल ऑफ क्वांटिटी। जो प्रॉफिट पहले कंज्यूमर्स को हो रहा था जब प्राइसेस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल थी, अब वो प्रॉफिट, वो सरप्लस प्रोड्यूसर्स के पास जा रहा है बिकॉज दे आर चार्जिंग हायर प्राइसेस। सो वी डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस, क्योंकि टोटल सरप्लस इज व्हाट? टोटल सरप्लस इज अ सम ऑफ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर सरप्लस। तो इवन इफ कंज्यूमर सरप्लस डिक्लाइन होके प्रोड्यूसर सरप्लस में इंक्रीज क्रिएट कर रहा है, द टोटल सरप्लस इज अनअफेक्टेड। द प्रॉब्लम इज कि ये जो क्वांटिटी है ये ना तो कंज्यूम हो पा रही है ना प्रोड्यूस हो पा रही है, तो ये वाला जो लॉस हो रहा है, दिस इज द लॉस विच इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। Monopolist profits are not a problem. The monopolist is still earning some positive profit. The profit here is basically a transfer from the consumer surplus to the producer surplus. But the loss which is actually happening here is the loss because the monopolist is producing less than the socially efficient level of output. And that is the real cause of concern for the society, because इस आउटपुट की वजह से, इस डेफिसिट आउटपुट की वजह से एक लॉस क्रिएट हो रहा है सरप्लस में, जो दोनों ही कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों के लिए हो रहा है, which is what the society is bothered about when the monopolies are in place. So the society is not concerned about monopoly profits. The society is only concerned about this extra loss जो कि दोनों को हो रहा है, कंज्यूमर्स को भी और प्रोड्यूसर्स को भी, क्योंकि इस एक्स्ट्रा क्वांटिटी के लिए कोई कंज्यूमर नहीं है तो ऑब्वियसली कोई प्रोडक्शन भी नहीं होगी। तो रादर देन प्रोड्यूसिंग एट दिस सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट, द मोनोपोलिस्ट इज प्रोड्यूसिंग एट दिस आउटपुट, और ये जो लेवल ऑफ आउटपुट है ये ना तो कंज्यूम हो पा रहा है ना प्रोड्यूस हो पा रहा है, विच इज क्रिएटिंग अ डेड वेट लॉस। नाउ आर देयर सम वेज ऑफ रिकवरिंग दिस क्वांटिटी? क्या कोई एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे आप ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर भी पाओ और मोनोपोली अपने मार्केट में रह भी पाए? That is something which could be explored by introducing the changes in prices or something called as price discrimination. देखो, सोसाइटी लॉस का मतलब है, सोसाइटी किन लोगों से बनती है? सोसाइटी इज कंप्राइजिंग ऑफ बोथ द कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर। सो सपोज यू आर हेडिंग द सोसाइटी, यू आर द हेड ऑफ द सोसाइटी। एक आपके पास कंज्यूमर आता है और बोलता है कि हमें ज्यादा प्राइसेस पे करने पड़ रहे हैं, सो इट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, ये हमारे सरप्लस को रिड्यूस कर रहा है। यू आर द सोसाइटी हेड। एक प्रोड्यूसर आता है, वो बोलता है दैट आई एम वेरी हैप्पी विद द सिचुएशन बिकॉज आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। नाउ एज अ हेड ऑफ द सोसाइटी, अगर आप टोटल सरप्लस इंक्रीज करना चाहते हो या आप टोटल सरप्लस से कंसर्न्ड हो, तो आपके लिए ये सिचुएशन एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन ही है, क्योंकि जितना सरप्लस यहां से कम हो रहा है, जितना सरप्लस कंज्यूमर का कम हो रहा है, वो सरप्लस बेसिकली प्रोड्यूसर के पास जा रहा है। तो कंज्यूमर को डेफिनेटली लग रहा है कि उनसे ज्यादा प्राइसेस चार्ज करे जा रहे हैं, सो इट इज नॉट अ फेवरेबल सिचुएशन, लेकिन एट द सेम टाइम प्रोड्यूसर्स का फायदा भी हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो सरप्लस है ये ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये सरप्लस कंज्यूमर से प्रोड्यूसर पे ट्रांसफर हो रहा है, and this is creating monopoly profits for the producers. Now the society head should not really be concerned about monopoly profits, because ultimately एक कंज्यूमर से दूसरे प्रोड्यूसर पे सरप्लस ट्रांसफर हो रहा है, तो सोसाइटी के लिए तो सरप्लस अफेक्ट नहीं हो रहा, एक जने से कम हो रहा है दूसरे के पास आ रहा है, सो द टोटल सरप्लस इज अनअफेक्टेड। सो द सोसाइटी हेड शुड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट दिस इशू. What is concerning the society head is this consumer who is coming to the head and saying कि पहले मैं ये कमोडिटी कंज्यूम कर पा रहा था क्योंकि प्राइसेस थे 10 रुपीज, लेकिन अब मैं ये कमोडिटी बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अब ये प्राइसेस हो गए हैं 20. दिस कंज्यूमर इज टेकन आउट ऑफ द मार्केट. He or she is no more in the market. ये बेसिकली ये कंज्यूमर उस क्वांटिटी का पार्ट है जो क्वांटिटी यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करी जा रही है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय मोनोपोली एंड द सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ क्वांटिटी.
The real point of concern for the society are these consumers or the deficit in quantity which is not produced at all, because this is actually leading to a fall in total surplus. Because ये क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ना ये डिमांड करी जा रही है, तो ये कोई ट्रांसफर, इस केस में कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है सरप्लस का कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक। इस केस में एब्सोल्यूट लॉस हो रहा है सोसाइटी का, क्योंकि ये कंज्यूमर्स मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं। दीज कंज्यूमर्स आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट बिकॉज ऑफ द हायर प्राइसेस, एंड बिकॉज ऑफ विच the monopoly is also not producing for them because they are charging higher prices. So these people are taken out of the market, and this is creating this deadweight loss or the fall in total surplus. इससे पहले वाली क्वांटिटी के लिए क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स मार्केट में तो है, लेकिन जो कंज्यूमर पहले 10 रुपए दे रहे थे वो अब 20 रुपए दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो इस कमोडिटी को 20 रुपए पे भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन दे आर स्टिल फीलिंग सैड अबाउट इट बिकॉज दे हैव टू पे अ हायर प्राइस। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज हैं जो पहले कंज्यूमर्स के पास रहते थे, क्योंकि दे हैड टू गिव 10 रुपीज टू कंज्यूम द कमोडिटी, नाउ दिस एक्स्ट्रा 10 रुपीज गोइंग टू द प्रोड्यूसर्स। तो यहां से -10 हो रहा है, यहां पे +10 हो रहा है। सोसाइटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अनलेस द सोसाइटी इज कंसर्न्ड अबाउट इक्वालिटी एंड अदर डायमेंशंस। अगर हम उन सारी चीजों को अलग रखें तो सोसाइटी को इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सोसाइटी को इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि जो कंज्यूमर्स पहले इस कमोडिटी को कंज्यूम कर पा रहे थे एट 10 रुपीज, वो अब इस कमोडिटी को बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। दे आर गोइंग आउट ऑफ द मार्केट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइसेस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट cost of monopolies, it has to be clearly understood that the society does not have a problem with higher prices charged by monopolies or the monopoly profits. If there is a monopoly in the market and if it is earning profits, the society is happy with it till the time there are consumers who are not leaving the market because of higher prices. तो अगर higher prices की वजह से consumers market leave कर रहे हैं, then it is a problem for the society. Right? And that could be tackled by one method which is called as price discrimination. Now, what is this price discrimination? Price discrimination का मतलब है कि आप अलग prices charge करो अलग consumers से. So you charge a different price from each consumer, and आप इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे वो अलग अलग मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बट द रीजन व्हाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कुड एक्चुअली इंप्रूव द मार्केट सिनेरियो इज कि ये जो कंज्यूमर है जो कि पहले 10 रुपीज पे इस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा था, 20 रुपीज पे नहीं कर रहा है। अगर सपोज मोनोपोली बोलती है कि मैं इस कंज्यूमर के लिए अपने प्राइसेस को 20 से रिड्यूस करके 12 कर देता हूं, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट थी 10। अगर ये कंज्यूमर इस कमोडिटी को 12 रुपीज पे खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, देन यू आर इन अ वे रिड्यूसिंग द डेड वेट लॉस, बिकॉज नाउ दिस कंज्यूमर हु वॉज leaving the market at prices equal to 20 is now entering the market back again. ये कंज्यूमर अब बोलेगा कि ओके, बिकॉज द प्राइसेस आर 12, जो कि 10 से ज्यादा है, लेकिन स्टिल आई कैन अफोर्ड एट 12, आई कैन परचेज द कमोडिटी एट 12, इट इज स्टिल अफोर्डेबल फॉर मी टू कंज्यूम द कमोडिटी एट 12 रुपीज, तो आई एम गोइंग टू परचेज द कमोडिटी। बेसिकली जो भी इस कंज्यूमर की वैल्यू होगी, जो इसकी रिजर्वेशन प्राइस होगी, अगर उस रिजर्वेशन प्राइस या उस वैल्यू से नीचे मोनोपोली की प्राइस होगी, देन ये कंज्यूमर उस कमोडिटी को खरीदने के लिए रेडी होगा। ठीक है, तो अगर मैं एज अ कंज्यूमर बिलीव करती हूं कि मैं इस कमोडिटी के लिए मैक्सिमम 15 रुपए पे करना चाहती हूं, और मोनोपोलिस्ट मेरे पास आके बोलता है कि ओके यू हैव टू पे 12 रुपीज फॉर इट, then I will decide to consume it. लेकिन अगर monopolist बोलेगा that I am going to charge 20, then I will not buy it because my maximum price is 15. मैं सिर्फ 15 रुपीज तक इस commodity को खरीदना prefer करूंगी. So by introducing price discrimination, by charging different prices from different consumers, this deadweight loss could be reduced or eliminated. Price discrimination is only possible in case of a monopolist and not in competitive markets.